So again, good morning. Let us continue this exercise 7.2. That was question number 4 we have done in the last lecture. Now, today we will cover next 4 questions of this exercise, that is question number 5, 6, 7, 8, and this is part 7 of the video. And exercise 7.2 we are doing triangle chapter from NCERT class 9 chapter 7, and in this chapter we have so far we have covered 7.1 exercise, 2 theorems, that is isosceles triangle property, that are important from exam point of view, and 7.2 exercise, still 4 questions. Now let us do question number 5. So question number 5 statement is, the diagram is given to you. ABC and DBC are 2 isosceles triangle. ABC and DBC are 2 isosceles triangle. ABC and DBC. So these 2 isosceles triangle are given on the same base BC. So BC is the common base or the same base, and these 2 triangle are isosceles, then it has to be AB equal to AC and BD equal to CD, because these 2 triangles are isosceles. If this triangle is isosceles, this triangle is isosceles, and the base BC is common, definitely AB and AC has to be equal, BD and DC has to be equal. So let us write given. So given information is these triangle are isosceles, so we can directly write that AB equals to AC, or even you can write that these triangle are isosceles. You know, isosceles triangle have 2 sides equal, so we have used directly here. So here BD equals to DC given. Now to prove, show that ABD angle equals to ACD angle. ABD angle equals to ACD angle. So very easy proof. See carefully. These 2 sides are equal. So what can you say about these 2 angles? They are equal. These 2 sides are equal. What can you say about these 2 angles? They are equal. Since 1 and 2 are equal, 3 and 4 are equal, so their sum is also equal. So 1 plus 3 equals 2 plus 4. That is what we are required to prove. ABD angle is 1 plus 3 and ACD angle is 2 plus 4. So let us do this easy proof. So for doing this, what you have to do is, in triangle ABC, AB equal to AC, because the triangle was isosceles, it is given. So this implies that angle 1 equals to angle 2, because we have used here isosceles triangle property. As the angle opposite to equal sides are equal. तो अगर आप ये पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अदरवाइज इतना लिखेंगे तो भी चलेगा. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. Similarly in triangle DBC, DB equal to DC implies angle 3 equal to angle 4, रीजन सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी सेम लिख देना, इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ यू ऐड दीज 2 इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, यूक्लिड एक्सियम याद करो चैप्टर 5 में. अब आपके सिलेबस में चैप्टर 5 नहीं है, डिलीट हो गया, बट हमने कर लिया है चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 का यूज तो फिर भी हो ही रहा है. यूक्लिड का एक्सियम क्या होता है? थिंग्स इक्वल थिंग्स आर एडेड टू इक्वल, the wholes are equal. So equation 1 and equation 2 can be added and still they will be equal. So by adding 1 and 2, what we get? Why we are adding? We are adding to get this result. ABD angle comprise of these 2 parts, angle 1 and angle 3. So we have to add them to get the answer, to get the result proved. So angle 1 plus angle 3 left side और right side में equal, add करेंगे तो angle 2 plus angle 4. So adding 1 and 2 we get this. That implies 1 plus 3 angle, angle 1 plus angle 3, this complete angle, and this complete angle is what? ABD angle, and angle 2 plus angle 4 is what? Complete angle ACD. So ABD equals to ACD, and that is what we are required to prove. So in the last we can write hence proof.
सो दैट वाज एन इजी प्रूफ। एक और प्रूफ है इसका, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो इसका सेकंड प्रूफ देख लेते हैं, एक और प्रूफ है हमारे पास इसका। तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 लेने की जरूरत नहीं है, इनको ये नाम रखने की जरूरत नहीं है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और एडी को ज्वाइन कर देते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करी हमने, क्या करा कंस्ट्रक्शन में लिखना आप, ज्वाइन एडी। अब जैसे ही आपने एडी को ज्वाइन करा तो आप यहां पर देख रहे हो दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी और ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन, ये भी गिवन, और ए डी इक्वल्स टू ए डी, रीजन कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। दिस इज बाय साइड 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 रूल। ट्रिपल एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होते ही आपके पास ए बी डी एंगल इक्वल्स टू हो गया ए सी डी एंगल, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दैट इज सीपीसीडी। लास्ट में भी अभी हमने सीपीसीडी यूज किया था, इसमें नहीं, लास्ट में तो हमने ऐड कर दिया था, इसमें हमने क्या यूज किया, सीपीसीडी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड दे आर इक्वल, और यहां से आपका हेंस प्रूव हो गया। तो दैट वाज आल्सो एन क्विक एंड इजी प्रूफ। ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो बना लेते हैं डायग्राम, वैसे बुक में दिया हुआ है डायग्राम, बट ट्रायंगल एबीसी तो नेमिंग यहां क्या रखी है, सी बी है यहां पर। तो ट्रायंगल ABC, this triangle is ABC and side BA is produced to point D. CA को प्रोड्यूस कर दिया D पॉइंट तक, and then D is joined to point C. Okay, and the BA is produced to AD such that BA and AD are equal, और ट्रायंगल आइसोसेलेस दी हुई है तो AB इक्वल टू AC गिवन है। तो let us read the complete information. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AB equal to AC given है, and side BA is produced to point D such that AD equal to AB. Show that BCD is a right angle. So BCD, this complete angle we have to show that this is a right angle. So firstly we'll write what is given. So given is in triangle ABC, it is isosceles triangle, so AB equals to AC. Further we are given that BA produced to D such that AB equals to AD, and then join D by C. All right, so this is the figure. Along with we have written the given information. Let us write what we are required to prove. So we are required to prove BCD angle equals what, 90 degree, and let us start the proof. So proving this, let us name the angles. This angle is 1, let us name this angle is 2. इस एंगल के दो पार्ट कर लेते हैं, इजी रहेगा स्टडी करना। तो एंगल 3 और इस एंगल को एंगल 4, ये एंगल 3 एंगल 4। नाउ आपको 4 एंगल दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4। एक बात देखो, आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है। अगर ये 90 डिग्री दिखाना है तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से 90 डिग्री आएगा। तो आपको कहीं से ऐसा स्टार्ट तो करना पड़ेगा जिसमें कुछ 90 डिग्री या 180 डिग्री कुछ न्यूमेरिकल एंगल दिखे। तो क्यों ना हम एक ट्रायंगल दी हुई तो एंगल सम प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें। तो लेट अस, ये आइडिया आया हमारे माइंड में, तो लेट अस स्टार्ट दैट इन ट्रायंगल, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन रही है। तो कंप्लीट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल DBC। तो जो DBC ट्रायंगल है इसके अंदर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो एंगल एट D दैट इज एंगल 2 जो ये मार्क कर रखा है हमने, प्लस एंगल एट B जो एंगल 1 है, प्लस एंगल एट C। अब बच्चों ध्यान से, जो एंगल C पर है वो एंगल C कंप्लीट एंगल 3 + 4 के इक्वल बनेगा सम।
तो सी एंगल को मैं 3+4 लिख रहा हूं और ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये एंगल डी है, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। और रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज ASP, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल स्टेट्स दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड वी हैव प्रूव्ड इट इन 6.7 थ्योरम इन द लास्ट चैप्टर, 6th चैप्टर। ऑल राइट, नाउ BCD एंगल इज व्हाट, BCD, अगर आप BCD एंगल को ध्यान से देखें तो BCD एंगल आपको 3 एंगल प्लस 4 एंगल के इक्वल दिखेगा, यू कैन सी इन द डायग्राम। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 BCD एंगल है, तो ये एंगल तो ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 को इनको एलिमिनेट करके 3 और 4 की फॉर्म में लेकर आएंगे सो दैट इसको 90 दिखा दे। अब देखो 2 का 1 का 3 का 4 का कुछ रिलेशन बनता है, तो इसके लिए हम यहां बता रहा हूं मैं आपको, सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके बाद यही करना है आपने, बट मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं जो यहां करना है वो यहां कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे को यहां आगे कुछ लिखना है, तो पहले मैं यहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर ला रहा हूं। तो सिंस एंगल 2, सिंस AB इक्वल्स टू AC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट हियर गिवन लिख लेना, इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इज दैट सो? अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। Why? This is due to isosceles triangle property। बहुत ज्यादा यूज होता है वो दो थ्योरम का, जो 7.2 और 7.3 थ्योरम ने की थी, कि अगर साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। अब सिमिलरली ये इसके इक्वल गिवन है, AB और AD इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में गिवन। अच्छा, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर आप क्या कह सकते हो, AB AC के इक्वल गिवन है, AB AD के इक्वल गिवन है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप यहां से कह सकते हो कि AC और AD भी इक्वल होंगे, यस, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ACD ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2, और रीजन इसका भी सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट एंगल इक्वल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, यही हमें चाहिए था। 2 की वैल्यू हमने पुट की यहां पर 4, 1 की वैल्यू पुट की हमने 3, कहां से, यहां से। 2 एंगल किसके इक्वल था, 4 के, तो हमने 2 की जगह 4 रखा, ये 2 था, इस 2 की जगह हमने 4 रखा क्योंकि 2 4 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है, 3, आपने सर्कल नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 1 किसके इक्वल है, 3 के, तो 1 की जगह हमने क्या रख लिया, 3, बाकी तो ठीक है। वहां पर इसके आगे लिखे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, सेम। अब देखो एंगल 3 और एंगल 3 कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 4 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। सो कैंसिल करें यहां से, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल है आपका, दैट इज एंगल BCD इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 90 डिग्री, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, एंड इट इज हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने ये इंफॉर्मेशन ये इसके नीचे ही लिखनी है, फिर आगे करना है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7, ABC is a right triangle in which angle A is 90 degree। ABC एक right triangle है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ABC एक right triangle है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सो एंगल एट A is 90 डिग्री, ओके, सो चेंज इट, ABC is a right triangle with angle A is 90 degree। Now we are given that AB equal to AC, AB equal to AC, it is given to us, and angle A is 90 degree, it is also given, so this is the given information। Now we are required to find, अब हमें इसमें प्रूफ नहीं करना, हमें फाइंड करना है एंगल B और एंगल C। बहुत इजी क्वेश्चन, अब फाइंड करना है ना हमने इसका, तो प्रूफ करना होता है तो प्रूफ लिखते हैं, फाइंड करने वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, ध्यान से देखो, तो आपको पता है कि AB और AC इक्वल है, पता है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है। जब
दो साइड इक्वल होती है तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज गिवन ए बी इक्वल टू ए सी इंप्लाइज ए बी के ऑपोजिट एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी दे आर इक्वल। और इसका रीजन क्या है, ऑब्वियस रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। रीजन है हमारे पास कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट उस पूरी स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख दे तो इसका मतलब वही है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और sides opposite to equal angles are equal. Here we have used angle opposite to equal sides are equal. So opposite sides was given equal, we have used that their opposite angles is equal. All right. Now since now also we'll write here also angle A plus angle B plus angle C is 90 degree. Why so? Because of this is angle sum property. Use angle C and B are equal, so use them. And angle A is given to be 90 degree. So we can write to angle B. Why? C angle B angle के इक्वल है, यहाँ यूज कर लिया, C को B लिखा तो B प्लस B कितना हो गया 2B इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ 180 था। एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल B कितना हुआ ना 90 डिग्री, ये 90 माइनस हुआ और ये कैंसिल किया 45 पर, तो एंगल B कितना आ गया 45, बट एंगल B और C इक्वल थे तो C एंगल B कितना आ गया 45. So the answer is B is 45 as well as C is 45. ऐसी ट्रायंगल को स्पेशल नाम क्या होता है, इस स्पेशल ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, and then we are done with 7.2 and we are left only with 7.3 in which only 5 questions are there. Let us do question number 8. Question number 8 is show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है तो उसके ऑल एंगल ईच एंगल कितना है 60 डिग्री। स्टार्ट करते हैं, प्रूफ इजी है। गिवन फिगर आप खुद बना लेना, फिगर तो मैं बना ही रहा हूँ, गिवन खुद लिख लेना, टू प्रूफ और गिवन लिख लेना। एबीसी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। प्रूव करना है कि इसमें ईच एंगल 60 डिग्री हुआ। तो लेट अस टेक दिस एंगल्स, तो इसका नाम 1 रख लेते हैं, 2 3। अब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, इट इज गिवन बिकॉज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। सिंस ये प्रूफ स्टार्ट कर दिया मैंने, छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं फटाफट। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, गिवन है तो हमने यूज किया। अब ऐसे करते हैं, फर्स्ट 2 ये तीनों इक्वल है तो पहले 2 इक्वल ले लेते हैं। AB इक्वल टू BC है तो आप यहां से क्या कह सकते हो, अगर AB BC के इक्वल है तो ये 1 2 3 अगर आप नहीं भी लोगे तो भी ईजी हो जाएगा, क्यों फालतू में नाम रख रहे हैं हम उसका। AB के ऑपोजिट एंगल देखो C और BC के ऑपोजिट एंगल A। रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब सेकंड थर्ड ले लो, BC या फर्स्ट थर्ड ले लो, आपकी मर्जी, दोनों से हो जाएगा। BC इसके ऑपोजिट एंगल A है और इक्वल टू AC, AC के ऑपोजिट एंगल B है, तो आप कह सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि यू नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल। अब क्या करो, एक की टर्म्स किस सबको एक ही टर्म्स में ले आओ, सब वैल्यूज को। तो कैसे लेकर आ सकते हो, अगर मैं इन सबको एक ही टर्म्स में लिख दूं तो एंगल A, B एंगल किसके इक्वल है A के, तो मैं यहाँ पर B की जगह A लिख सकता हूँ। C एंगल किसके इक्वल है A के, तो मैं यहाँ पर भी A की टर्म्स में लिख सकता हूँ। B को A यूज किया, C को A यूज किया, इक्वल टू 180 आया, तो थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 3 टाइम्स हो गया ना, तो एंगल A इक्वल टू 180 ओवर 3 इट इज 60। बट A एंगल तो B एंगल के इक्वल था, इंप्लाइज B एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, और A एंगल C के इक्वल था तो इंप्लाइज C एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट all the three angles of an equilateral triangle are 60 degree each, and hence proof. So this part is done and we are done with exercise 7.2. In next lecture we will cover exercise 7.3.